Marwa, right? Yes, ma'am, I'm audible. Yes. Okay, great. Yeah. So I guess we can just conclude and then we can start the Q&A session. So kindly just go ahead. अभी जो ये सारी गुफ्तगू हुई है इसमें बहुत सारे डेफिनेटली स्टूडेंट I'm not audible. Your voice is muffled. आई एम ऑडिबल ना Yeah, better. अभी जितनी भी सारी हमारी गुफ्तगू हुई है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन यकीनन स्टूडेंट्स के जहन में आए होंगे तो आप जो है इसमें डिफरेंट चीजों के हवाले से जो जो गुफ्तगू यहाँ पे हुई है जो जिसके जहन में क्वेश्चन ऑप्शन है दूंगी और इसके बाद जो है इंशाल्लाह एक आध दिन में मैं आपको Now you can ask questions, please. Okay. Thank you so much, first of all, for such a detailed insight. And I have one question that you mentioned about the training and how it would take a lot of years to
the point where we can have a good earning and a good position in the organizations, right? Be it NGOs or government sector. In a time or at a time where students are, like everything is really fast paced. Students of my peers are even earning right now, right? And a lot of them are freelancing, and I myself am a psychology and a sociology major. So, how do we manage this fast pace with the comparatively slower pace of the development and growth in the government sector? Because obviously, if students want to work, they would also have the issue that, I'm not growing, my peers are going growing faster, they're earning more, so why can't I, right? So that could fade into a lot of mental health issues as well, and a lot of other financial issues. So, what do you think? How can students manage that? I'm not talking about that we have involved in trainings during our studies, but we can, and training itself, if you attend some training, it's a fun and it's a very activity-based learning. And one thing which a student has to face, that is financial burden. It's really difficult to manage financial burden when you are also investing money on your education also. But for career, definitely we have to sacrifice, we have to move on without thinking that there is some mental burden. Without thinking, just piece of paper is degree is the piece of paper, but it's very important for all these jobs. If you have a lot of trainings, for example, I got 25 to 30 trainings, but definitely I got job through my degree. If I don't have sociology degree, it was impossible for me to get a job in such a prestigious organization. तो इसमें ये डिफरेंट चीजों को आप देखें कि एक तो मैं मुझे जो फील होता है, अगर आप जब ट्रेनिंग अटेंड करने जाएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ट्रेनिंग जो है वो एक एक्टिविटी बेस्ड फन टाइप ऑफ जो पढ़ाई का जो मेथोडोलॉजी है ना, ट्रेनिंग इससे टोटली डिफरेंट है। आप जब ट्रेनिंग में जाएंगे, आपको बहुत सारी चीजें उसमें एनर्जाइजर करवाई जाती हैं, उसमें डिफरेंट ऐसी एक्टिविटीज करवाई जाती हैं कि जो, और 3 से 4 दिन की टोटल ट्रेनिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अब आपके साथ ये शेयर करना चाहूंगी, टोटल हमें 6 ट्रेनिंग आपके पास होनी चाहिए, जो मैंने आपको 6 मेन ट्रेनिंग करी। We have a Ma'am, your 2 years. voice is. Can you repeat? Yeah, your voice is muffled. Can you repeat what you just said? I'm talking about 6 trainings. If you have a 2 years degree program, उसमें आप टाइम मैनेज करें। फर्स्ट 3 मंथ्स है, फर्स्ट सेमेस्टर है, उसमें आपने एक ट्रेनिंग जो है वो किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से लेनी है, और उसके बाद आप उसी को 6 ट्रेनिंग्स को अगर आप 2 years के अंदर मर्ज कर दें और उसको मैनेज करें, कि टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स, एंड नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स बट आल्सो फॉर द प्रोफेशनल्स। और हम अपनी अपनी इंजॉयमेंट के लिए टाइम निकालते हैं, ट्रेनिंग को इंजॉयमेंट समझ के करें, उसमें टाइम भी निकालें, और जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते, उसके लिए मैंने तरीकेकार बताया है। देयर आर मेनी लोकल एनजीओज व्हिच आर वर्किंग इन द लाहौर सिटी और विद इन द विसिनिटी ऑफ लाहौर सिटी। लड़के तो बाहर भी जो है वो 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए जा सकते हैं, लेकिन विद इन सिटी जो है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एज अ वॉलंटियर आप काम कर सकते हैं। अगर आप गूगल पे जाएं, आप इवन जो यूएन ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी एज अ वॉलंटियर काम कर सकते हैं। उसमें जो है गूगल पे जो है पड़ी हुई है बहुत सारी यूट्यूब चैनल्स भी बने हुए हैं कि हाउ टू रजिस्टर एज अ वॉलंटियर इन द यूएन ऑर्गेनाइजेशन। आप उसमें आप बैठे पाकिस्तान में है, लेकिन आप कोई एक्टिविटीज लगाई जाएंगी एज ए वॉलंटियर, आपको वो एक्सपीरियंस बिल्ड होता जाएगा, तो आप वो साथ साथ वो भी कर सकते हैं। और साथ देखिए मेन चीज जो मैंने स्टूडेंट्स में कम देखी है कि अप्लाई नहीं करते। अप्लाई करने के जब आपकी जॉब आपने जैसे ही आपकी डिग्री कंप्लीट है, आपको चाहिए कि यू हैव टू अप्लाई फॉर ई जॉब विच इज रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट। हम क्या सोचते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर है, यहाँ क्यों अप्लाई करें, यहाँ तो सिफारिश चाहिए। मैं आपको बताती हूँ, मैंने तकरीबन 5 ADs रखे हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स,
और हमारे पैनल इंटरव्यूज थे और पांचों के पांचों मेरिट पर रखे गए। अगर वो ये सोच के ना आते कि जी हमें तो सिफारिश पे नौकरी मिलनी है, हम किस लिए अप्लाई करें, तो उनकी जॉब ना होती। हर जगह पे अप्लाई करें। पैनल, बहुत से पैनल ऐसे, तो मैं ये नहीं कहती सिफारिश नहीं है, लेकिन साथ साथ रेफरेंस डेफिनेटली मैटर करता है। लेकिन साथ साथ ये है कि जब आप लायक हैं, आप चीजों को स्टैंड कर रहे हैं, आपके पास एक नॉलेज है, आपके पास स्किल है, तो आप डिफरेंट जगह पे अप्लाई करते हैं, डेफिनेटली यू विल गेट जॉब समवेयर। छोटी सी स्किल्स चाहिए होती है। जब आप पहला प्रोजेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आप बेरोजगार नहीं रहते, आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं। फिर आपको अपॉर्चुनिटीज को किस तरह ग्रैब करना है, इट इज अप टू यू। और सिर्फ 5 साल बाद, जब आप 5 साल एनजीओ में जॉब कर रहे हैं, उसके बाद आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ देखते हैं। उसके बाद ये नहीं है कि अगर आप एक लोकल एनजीओ में जॉब कर रहे हैं तो आपने कहना है कि मैंने अगले 20 साल इधर ही कर देने। नो, देन यू मेरे फान से उस पेपर आता था, मेरा सिर्फ एक काम होता था कि जैसे ही बेल होती मेरे भागते हुए पकड़ना होता था। पर मुझे इंटरव्यू देने के लिए इसना आना पड़ता था, मुझे इंटरव्यू के लिए लाहौर आना पड़ता था, मुझे इंटरव्यू के लिए पिशावर जाना पड़ता था। लेकिन मैं महीने में 2-3 इंटरव्यू जरूर देती थी। यूनिसेफ, यूएनडीपी, मैंने आपको बताया डब्ल्यूएचओ का जो मेरा 15 years बैक इंटरव्यू हुआ था, उसमें एज ए जेंडर स्पेशलिस्ट 4 फीमेल थी पूरे पाकिस्तान से, और उसमें जो हमारी सिलेक्शन हो गई थी। तो आप इंटरव्यू दें, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने किया हुआ है, तो इंशाल्लाह ताला आपको मिलेगा मौका। ये मत सोचिए इट्स डिफिकल्ट। टाइम मैनेजमेंट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। हाउ टू मैनेज टाइम, सॉरी इज नॉट डिफिकल्ट सब्जेक्ट। इसके साथ साथ अगर 2 साल के दौरान आप 6 ट्रेनिंग अपना स्केड्यूल बना लेते हैं, ना करें इस्लामाबाद से, आप लाहौर से कर लें। लाहौर में स्टेप पाकिस्तान के जो चार्जेस हैं वो उससे ज्यादा नहीं है, उनके ट्रेनिंग जो है वो काफी बेहतर होती है। और बाज़ औक़ात वो, तो उनके पास ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें उनको बच्चे चाहिए होते हैं या स्टूडेंट्स चाहिए होते हैं जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग करवा रहे हैं। बस बात ये होती है कि ढूंढना पड़ता है, और ढूंढने वाले को जवाब मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay. Yeah. Thank you, ma'am. And in the audience, do you guys have any questions? Like, you guys can raise your hands if you have questions. It seems that no one really has questions. I had this major one, so thank you so much for the insightful answer. And I guess it's time to end the session. So thank you so much for joining us today. And it was a pleasure to host you. It's really clear to meet Allah. generation and students, and share my and all this. Thank you, ma'am. Allah Hafiz. Just end.
Greetings, everyone. I hope you all are doing well. I would like to welcome you all to the Department of Sociology's. Guys, am I audible? Someone just tested that. Okay, great. Greetings, everyone. I hope you all are doing well. I would like to welcome you all to the Department of Sociology session on career opportunities for sociology students. The Sociology Department at FCCU is one of the oldest and most prestigious social science departments at the university, with the aim to educate students on fundamental concepts, theories, research, service, and ethics of sociology and other social sciences. This talk has been organized by the Forman Sociological Society with the objective of helping students explore the wide range of career prospects in sociology. Today, we are pleased to host Ma'am Nushin Zaidi. Ma'am Nushin is the Deputy Director of Social Mobilization at the Walled City of Lahore Authority. She has an MPhil in sociology and has 5 years of experience working with various NGOs, as well as 15 years experience working in the government sector. She has with the Asian Development Bank, IUCN, the Swiss Development Corporation, Save the Children, and the World Bank. And she has also recently been working with the French Development Agency and AKCSP. Ma'am Nushin, it's an honor to have you here with us today. Thank you. Marwa already introduced me, but now I would like to tell you a small introduction.
I'm working as a Deputy Director Social Mobilization for the 15 years in the Walled City Lahore Authority. And as she told, I have experience of 5 years with different national and international NGOs in far-flung areas of Dera Ismail Khan. Today is very interesting topic. Sociology, बहुत से बच्चे सोशियोलॉजी करते हैं. आज मैं आपको थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड भी बताऊंगी कि सोशियोलॉजी में आना और सोशियोलॉजी की डिग्री हासिल करना और फिर उसमें करियर बनाना, उसके लिए क्या क्या चीज जरूरी है, जिसके लिए खास तौर पे जो है वो आज अरेंज किया. सोशियोलॉजी में 2 किस्म की करियर अपॉर्चुनिटीज हैं. जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक एनजीओ सेक्टर है और एक गवर्नमेंट सेक्टर. गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन क्योंकि बाज बच्चों की तो मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन बच्चियों के जो पेरेंट्स हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर को प्रेफर करते हैं, इसलिए मैं भी बताऊंगी कि आप किस तरह से आप अपना करियर जो है वो इसमें अपने आप को ग्रो कर सकते हैं. सोशियोलॉजी की डिग्री हासिल करने के बाद, बिकॉज इट्स अ प्रोफेशनल डिग्री, बहुत से बच्चे ये समझते हैं कि शायद आगे जब हम जाएंगे तो बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो हमारी मुंतजिर होंगी और हमने इंटरव्यू देने और हमें सिलेक्ट हो जाना है. लेकिन ऐसा नहीं होता, और जब ऐसा नहीं होता तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा डिसहार्ट होते हैं. अब सिर्फ डिग्री हासिल करके अगर आप जॉब के लिए जाएंगी तो सबसे पहले जो है वो आपके लिए, चाहे वो एनजीओ का टेस्ट हो, चाहे वो एनटीएस हो गवर्नमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब हासिल करने के लिए आपने एनटीएस भी देना लाजमी होगा, आपको 7 ट्रेनिंग्स जो हैं वो जरूर हासिल करनी पड़ती हैं. मैं अब बताऊं, जब मैंने मेरा पहला एमफिल जो है वो एग्रोनॉमी में था, और तब भी जॉब स्लम था और मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि मैं किस तरह से जो है वो डिफरेंट जगहों पे इंटरव्यूज भी दिए, लेकिन कहीं से भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही थी. तो उन्हीं दिनों एक स्विस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्विट्जरलैंड से है, उन्होंने नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट का एक प्रोजेक्ट शुरू किया. नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट उन्होंने डिफरेंट गांवों में शुरू किया, और उसमें यह था कि फार्मर्स के साथ मिलके पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट के तहत काम करना था. अब मेरे पास तो बुकिश नॉलेज था, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस है, जो रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, वो नहीं था, और ना ही मेरे पास वो रेलेवेंट ट्रेनिंग्स थी. लेकिन फॉर्चुनेटली मेरे पास डिग्री थी, जो उनको उसी डिग्री की जरूरत थी. तो मुझे मेरी पहली जॉब मुझे घर बैठे मिली. मेरी यूनिवर्सिटी से जो है पता किया गया, वहां से जो स्टूडेंट थे उसमें जो है मुझे कॉल किया गया और वहां पे बुलाया गया. जब मुझे जॉब मिली तो मैं बड़ी खुश हुई. मैंने कहा देखा, एनजीओ सेक्टर में जॉब मिल गई है और इतनी जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मैं प्रोजेक्ट करने जा रही हूँ, तो मेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी. तो जो पहला कमेंट मुझे अपने हेड की तरफ से मिला वो ये था कि नहीं, यू हैव टू अंडरगो डिफरेंट ट्रेनिंग्स, क्योंकि जब तक आप ये ट्रेनिंग्स नहीं लेंगी तब तक यू आर नॉट एबल टू गो टू द फील्ड एंड वर्क विद द कॉमन पीपल. हमें लगता है कि फील्ड में काम करना आसान है, लेकिन अभी मैं आपके साथ एक लिस्ट शेयर करूंगी. उसका फिर ये हुआ कि हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन हायर की गई जो कि चिप इस्लामाबाद. मैं आपको नाम इसलिए साथ साथ बताने जा रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं और वो फिर किस तरह से अपने जो ट्रेनिंग्स हैं उनको आगे रेफर करती हैं. चिप इस्लामाबाद जो है ये CHIP, सिविल एंड ह्यूमन इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम, मैं दोबारा रिपीट करने लगी हूँ, सिविल एंड ह्यूमन इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम के नाम से एक इदारा इस्लामाबाद में है जो कि सारी एनजीओ से रेलेवेंट ट्रेनिंग्स देता है. इसमें हम एक पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम से गुजरे. इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो है वो हमें सोशल मोबिलाइजेशन, फैसिलिटेशन स्किल्स, रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स, प्रोजेक्ट साइकिल मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन स्किल्स, और इसी तरह की कुछ और ट्रेनिंग्स जो है, रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स, क्योंकि अगर आप एनजीओ सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं तो आपकी ये सारी स्किल्स आपके पास होना जरूरी. प्रपोजल राइटिंग स्किल्स. तो हमें पूरे इस प्रोसेस से गुजारा गया. अच्छा, अब हर प्रोजेक्ट जो है उसकी ट्रेनिंग्स, 1-2 स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स होती है. फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अब नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट कर रही थी तो मुझे पार्टिसिपेटरी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग भी दी गई. ये सारी ट्रेनिंग्स हासिल करने के बाद प्रोजेक्ट के दौरान डिफरेंट टाइम पीरियड के साथ हम लोग फील्ड पे जाते थे. फील्ड पे उसको डिमॉन्स्ट्रेट करते थे और हमें ऑब्जर्व किया जाता था कि क्या ये उस ट्रेनिंग्स को फॉलो कर रहे हैं. अच्छा, अब जो हम डिग्री लेते हैं वो बेसिकली जॉब की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जो हम ट्रेनिंग्स लेते हैं, ट्रेनिंग्स में 3 चीजें जो हैं वो हर ट्रेनिंग का जो है वो आउटकम होती है.
जिसमें सबसे पहली चीज है कि आपको, उसको कहते हैं KSA, नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड। जब हम यूनिवर्सिटी में होते हैं तो हम शहंशाह होते हैं, हम किसी से बात भी नहीं करते या उस तरह से हमारा एक एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। इन ट्रेनिंग्स के थ्रू हमारा एटीट्यूड भी साथ डेवलप किया जाता है, स्किल्स और उसके साथ नॉलेज के साथ। हम किस तरह से जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जो गांव में रहते हैं या इवन शहर में रहते हैं, उनसे हमने किस तरह से कम्युनिकेट करना है, उनको किस तरह से मोबिलाइज करना है। इसकी बाकायदा तौर पे जो ट्रेनिंग्स होती हैं उसमें ये परसेंटेज के हिसाब से होता है कि हर ट्रेनिंग के एंड पे हमने कितने परसेंट नॉलेज गेन करना है, कितने परसेंट हमें स्किल डेवलप होंगी हमारी, और कितने परसेंट हमारा एटीट्यूड जो है वो काउंट होगा। जैसे कि आजकल मॉडर्न ह्यूमन रिसोर्स जो आजकल है उसमें सबसे ज्यादा आपका एटीट्यूड मैटर करता है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमें सिखाई जाती हैं, उसके बाद जाके हम लोग इसको इस पे इम्प्लीमेंट करते हैं। अब दो तरीके हैं, या तो आप पहले जो मैं आप कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस के भी नाम आपको बताना चाहूंगी जो कि इस वक्त वर्ल्ड लेवल की ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, जिसमें NGORC कराची, चिप इस्लामाबाद में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सैप पाकिस्तान लाहौर, जहां से मैंने जेंडर पॉलिसी, जेंडर मेन स्ट्रीमिंग और जेंडर से रिलेटेड ट्रेनिंग्स जो हैं वो हासिल की थी। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इसी तरह SPO लाहौर में भी उसका एक ऑफिस है, SPO भी पूरा उसका जो है एक HR यूनिट है जो कि ट्रेनिंग्स जो है NGOs की देता है। अब इसमें दो तरीके हैं जॉब हासिल करने के। सबसे पहले तो या आप किसी NGO के साथ कोई किसी प्रोजेक्ट में, अगर आपको जॉब नहीं भी मिल रही, आप इंटर्नशिप करें और आप उसके थ्रू ट्रेनिंग हासिल करें। उसका फायदा ये होता है कि आपको, क्योंकि एक एक ट्रेनिंग पे कम से कम 30-30, 40-40 हजार, 50 हजार का जो है वो एक एक्सपेंस आ रहा होता है, तो वो ट्रेनिंग आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है। दूसरा तरीका है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप 4-5-6 ट्रेनिंग का जो बेसिक है वो आप किसी भी इनमें से अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को, सारी अच्छी हैं लेकिन जो आपको ज्यादा बेहतर लगती है तो उसको चूज करके आप ये ट्रेनिंग्स का पूरा पैकेज कंप्लीट करें। जिस टाइम पे जॉब अनाउंस होती है, चाहे वो NGO सेक्टर की जॉब हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब हो, जब भी आप प्रोजेक्ट्स करेंगे, क्योंकि मैंने अब ये जो वॉल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी, इट वाज अ प्रोजेक्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ वॉल्ड सिटी प्रोजेक्ट, और ये वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था। और वर्ल्ड बैंक ने सबसे पहले जब हमारा इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने वो सारी बेसिक ट्रेनिंग्स, पार्टिसिपेटरी रूरल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग होती है, उसी के क्वेश्चंस किए थे। वो सोशियोलॉजी का स्टूडेंट हो, सोशल वर्क का स्टूडेंट हो, वो उसको आंसर नहीं कर सकता जब तक कि स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स आपकी नहीं होती हैं। जब आप अच्छी जॉब के लिए जाएंगे, आपका इंटरव्यू होगा, आपने ट्रेनिंग्स ली हुई हैं, आपका इंटरव्यू बेस्ट होगा और आप फौरी तौर पे सिलेक्ट हो जाएंगे। अब एक तो ये तरीका है कि आप पहले ट्रेनिंग्स हासिल करें, इन ऑर्गेनाइजेशन से राब्ता करें और फिर जो है इनसे ट्रेनिंग पैकेज ले लें। दूसरा तरीका ये है कि आप किसी छोटी ऑर्गेनाइजेशन से शुरू करें और फिर उसमें जो है आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड होते जाएं। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि NGO सेक्टर, ये ट्रेनिंग्स आपने हासिल कर ली, अब NGO सेक्टर में किस तरह से आपका करियर ग्रो करता है। क्योंकि आप ये देखें कि आपने सबसे पहले इनिशियल लेवल पे जाना है। आप किसी भी प्रोजेक्ट में जब एज अ सोशल मोबिलाइजर जाएंगे या किसी प्रोजेक्ट में आप जो है वो आप जाते हैं, आपको प्रोजेक्ट ऑफिसर या प्रोग्राम ऑफिसर के तौर पे जॉब नहीं मिलती स्टार्ट में, 5 years टाइम है जिसमें आप जब आप एक एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं तो NGO सेक्टर में आप मिड लेवल मैनेजमेंट तक पहुंच जाते हैं। मिड लेवल मैनेजमेंट से मुराद ये कि या आप एज अ प्रोजेक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर या आप प्रोग्राम ऑफिसर के तौर पे काम कर रहे होंगे, आप किसी एक प्रॉपर प्रोजेक्ट को हेड कर रहे होंगे, या आप एक प्रोग्राम की मिड लेवल मैनेजमेंट में होंगे। प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि एक प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स काम कर रहे होते हैं। तो ये आप अपने मिड लेवल करियर में 5 years का टाइम है, आप पहुंच सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में ये टाइम काफी लंबा हो जाता है क्योंकि ग्रेड्स होते हैं और आपको पता है इसमें डिफरेंट चीजें हैं। उसके बाद आपका जो अल्टीमेट गोल है वो आपकी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। अगर आप NGO सेक्टर को देख रहे हैं, आपने अगर 1-2 अच्छे प्रोजेक्ट्स कर लिए, अपनी ट्रेनिंग्स कर ली, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं बार बार इस चीज पे जोर दूंगी, आपकी स्पोकन इंग्लिश और आपकी रिटन इंग्लिश, इट शुड बी बेस्ट। अदरवाइज जब आप एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो ज्यादातर फॉरेनर्स आपको इंटरव्यू कर रहे होते हैं। तो हमारे स्टूडेंट साथ इशू ये होता है कि वो अगर कॉन्सेप्चुअली क्लियर हैं तो वो प्रॉपरली इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते, और अगर वो इंग्लिश उनको आती है तो कॉन्सेप्चुअली क्लियर नहीं होते। अगर आपकी ट्रेनिंग्स भी हैं प्रॉपर और साथ साथ आप इंग्लिश लैंग्वेज भी कर चुके हैं, आप लिख भी सकते हैं, तो आपके लिए इंटरव्यू पास करना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है।
तो ये सारी चीजें आपने माइंड में रखनी है। उसके बाद आपको कम से कम 10 से 12 साल का अरसा चाहिए होता है एक टॉप मैनेजमेंट पे पहुंचने के लिए, जहां पे आप किसी भी, जैसे यूएन के ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन की इस टाइम हमारे पास कोई 13-14 ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी काम कर रही हैं जिसमें आप जो है 10-12 साल के एक्सपीरियंस के बाद डिफरेंट पोस्ट्स आती रहती हैं, आप उसमें एक बहुत अच्छी पोजीशन पे और बहुत अच्छी सैलरी के साथ, बहुत अच्छे फ्रिंज बेनिफिट्स के साथ काम कर सकते हैं। लेकिन आपको ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। महज डिग्री हासिल करके बहुत मुश्किल होता है कि आप इस लेवल पे पहुंचे। तो उसमें जो है वो यूएन विमेन है, यूएन एफपीए है, यूएनडीपी है, यूएन की काफी सारी हैं जो डिफरेंट, डब्ल्यूएचओ है। मेरे जब आज से 15 साल पहले जब मैंने यहाँ 17 ग्रेड में, तो उस वक्त मेरा डब्ल्यूएचओ में भी एज अ जेंडर स्पेशलिस्ट के तौर पे सिलेक्शन हुई थी, क्योंकि मैंने वहां पे भी इंटरव्यू दिया था। लेकिन मेरे वालिदैन ये चाहते थे कि नहीं, मैंने एज अ फीमेल वही चाहते थे कि नहीं, ये गवर्नमेंट सेक्टर ज्वाइन करे। तो गवर्नमेंट सेक्टर में एक तो प्रोग्रेस थोड़ी स्लो होती है, लेकिन जॉब की परमानेंट होती है, इसमें जॉब सिक्योर है। और दूसरा, सैलरीज डेफिनेटली उस लेवल की नहीं होती, कम होती हैं। अब गवर्नमेंट सेक्टर का मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है उस तरह से सोशल सेक्टर के लिए या सोशियोलॉजी और सोशल वर्क स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन आपको हॉस्पिटल्स में, बैतुल माल में, हर जगह पे सोशल वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट मिलती है। और उसका जो है प्रॉपर एक पब्लिक सर्विस कमीशन, एक पेपर होता है, वो पेपर आपने देना होता है। अगर वो आप पेपर जो अच्छे नंबरों से पास कर लेते हैं, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने इसी तरह से जो है उसको फॉलो किया और अब माशाल्लाह वो 18 ग्रेड में काम कर रही हैं। तो अगर आपने गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो फिर आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि आपने अपने जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, आपने उसकी भरपूर तैयारी करनी है। और साथ ही आपने अपना टेस्ट जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन का, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का, वो आपने क्लियर करना है। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स आते हैं, और गवर्नमेंट के पास जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, जैसे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी, इस तरह और भी बहुत सारे अदारे हैं जो कि प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं। प्रोजेक्ट्स हमेशा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ होता है। फॉर एग्जांपल, वर्ल्ड बैंक के साथ है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ है, क्योंकि जितनी भी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आम एनजीओ के साथ काम नहीं करती, वो गवर्नमेंट के साथ प्रोजेक्ट्स करती हैं। तो उसके लिए जो है आपका एनटीएस का एक टेस्ट होता है, जिसकी बुक्स बाजार से मिल जाती है, वो आप मार्केट से लें, उसकी तैयारी करें, एनटीएस क्लियर करें। लेकिन फिर वही बात है, अगर आपने किसी प्रोजेक्ट में एज अ सोशल मोबिलाइजेशन का के मोबिलाइजर के तौर पे काम करना है, या आपने प्रोग्राम ऑफिसर के तौर पे काम करना है, चाहे वो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है क्यों ना हो, ट्रेनिंग्स मस्ट है। क्योंकि ट्रेनिंग्स का मतलब ये होता है कि आपने प्रॉपर एक प्रोसीजर फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको छोटी सी एक मिसाल अपनी देना चाहूंगी कि मैंने जब आज से 15 इयर्स पहले ज्वाइन किया था, तो मेरा सबसे हमारा बड़ा चैलेंज ये था कि हम लोगों ने ट्रेडर कम्युनिटी को और जो रेजिडेंशियल कम्युनिटी है वॉल्ड सिटी की, दिल्ली गेट की, हमने उसको मोबिलाइज करना था। तो जो मेरी चिप इस्लामाबाद से, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग्स थी, तो यहाँ पे जो थे ट्रेनर, उनके जो फ्रेंड थे वो हमारे ट्रेनर थे, उन्होंने बेस्ट 4 सीवीज मांगी चिप इस्लामाबाद से, जिन्होंने से ट्रेनिंग्स ली थी, उनमें एक सीवी मेरी थी। और जब इंटरव्यू हुआ तो उसमें जो है वो फिर मेरी सिलेक्शन हो गई। तो ट्रेनिंग्स जो हैं वो आपकी इसलिए मस्ट हैं कि अगर आपने सिर्फ करियर ग्रो नहीं करना, साथ साथ अपने नाम भी पैदा करना है और एक अच्छा प्रोजेक्ट भी चलाना है। प्रोजेक्ट चलाना, प्रोजेक्ट साइकिल मैनेजमेंट, ये एक पूरा प्रोसीजर है। प्रोजेक्ट शुरू कैसे करना है, सबसे पहले उसका क्या तरीका कार है। ऐसे नहीं होता कि आप किसी भी कम्युनिटी में जाएंगे तो लोग आपको वेलकम करके और आपसे बात करना शुरू कर देंगे। उसमें फोकल पर्सन की आइडेंटिफिकेशन होती है। फोकल पर्सन जो है उसके हर इलाके में कोई ना कोई फोकल पर्सन होता है। फिर जब फोकल पर्सन आइडेंटिफाई हो जाता है, सेकंड स्टेप क्या होता है, आपने कम्युनिटी मीटिंग्स करनी होती है, ग्रुप मीटिंग्स करनी होती है, लोगों को जो है वो Mona, kindly mute your mic. म्यूट, शायद किसी का माइक ऑन है। No. Yeah. Okay. Yes, ma'am, go on. जी, उसके बाद आपने कम्युनिटी मीटिंग्स करनी है। कम्युनिटी मीटिंग्स करने में आपकी, अगर आपको पता है कि किस तरह से बात करनी है, आपने फैसिलिटेशन स्किल्स की, कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग ली हुई है, तो आपके लिए बात करना मुश्किल नहीं है।
कम्युनिकेशन स्किल्स में आपको सिखाया जाता है कि आपने ब्रोशर किस तरह, क्योंकि सिर्फ बात जो है वर्बली, जो 1-to-1 बात है, सिर्फ ये नहीं कम्युनिकेशन होती। आपने किस तरह से ब्रोशर्स डेवलप करने हैं, आपने किस तरह से, इसको कहते हैं IEC मटेरियल, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मटेरियल। कम्युनिकेशन की डिफरेंट किस्में हैं। आपने जब एक मीटिंग में बैठना है, आपने मुंह से भी बात करनी है, आपने उनको मटेरियल भी देना है कि कोई इस टाइम अगर आपकी बात गौर से नहीं सुन रहा तो कम से कम घर जाके उसको पढ़ सकता है। उसके बाद आपने उनकी छोटी छोटी तंजीमें बनानी है, तंजीमें बना के आपने प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना है। प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने के लिए जो तंजीमें बनेगी, आपने उनकी वो ट्रेनिंग्स करवानी है जो आपने हासिल की हुई है। फॉर एग्जाम्पल, हम CBOs बनाते हैं, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन कभी भी उस तरह से नहीं चल सकती अगर आपने उनको प्रॉपर ट्रेनिंग पैकेज नहीं दिया हुआ। CBO मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन। कम्युनिटी फिर आपकी दोस्त होती है, वो आपके साथ, आप अकेले प्रोजेक्ट को लेके नहीं चल रहे, लोग आपको आपके साथ हैं और उस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने में हेल्प कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक सड़क बनाई, आपने एक गली बनाई, आपने गली सुरजन सिंह नाम सुना होगा, इट्स आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट वर्ल्ड सिटी में, और ये हमारा सबसे सस्टेनेबल प्रोजेक्ट है, यूनेस्को अवार्ड जीता हुआ है। लेकिन आप ये ना देखें कि उसकी सिर्फ दीवार या दरो दीवार बनाए गए हैं, वो आगा खान ने बनाए हैं, लेकिन उसकी सोशल मोबिलाइजेशन हमने की है। उसकी सोशल मोबिलाइजेशन इस तरह की है कि अपनी गली को साफ कैसे रखना है, आपका अगर घर बना दिया गया है तो उसको मेंटेन कैसे रखना है, आपने गली को ओन कैसे करना है। गलियां तो बहुत सारी हैं पूरे पाकिस्तान में, लेकिन स्पेसिफिक आप सोचें कि इस गली की सफाई क्यों मशहूर हुई, उसके पीछे सिर्फ हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लोगों का हाथ नहीं है, उसके पीछे उस कम्युनिटी का हाथ है। और उस कम्युनिटी की हमने मर्दाना और जनाना तंजीमें बनाई थी, और दोनों तंजीमों ने उसके ऊपर काम किया और उस पर काम कर रही हैं। अगर कोई बंदा उस गली में उन रूल्स को फॉलो नहीं करता जो वहां पे हम लोगों ने दिए हैं, तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारा काम सिर्फ CBO को पॉइंट आउट करना है। ये फिर CBO की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने अपने लोगों को बताना है कि आपने किस तरह से इस इलाके को खूबसूरत रखना है, साफ सुथरा रखना है। आपने अगर गलियां बन जाती हैं, लोग क्या करते हैं, लोग तोड़ देते हैं उसको, सीवरेज सिस्टम खराब हो गया है तो उसको जो है ना, उसका पाइप खुद ही से चेंज कर दिया। लेकिन अगर कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है, अगर पार्टिसिपेटरी के तहत आप काम कर रहे हैं, तो कम्युनिटी आपके साथ मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन की उतनी ही जिम्मेदार होती है जितनी आप हैं। फर्क सिर्फ ये होता है कि क्योंकि हम लोग डिग्रीज के साथ आते हैं, हमारी जो ट्रेनिंग का लेवल होता है वो जरा हाई होता है। हमने उस ट्रेनिंग को एक बहुत ही आसान फहम उस जबान में जो कि वहां पे होती है, उसमें हम लोगों ने उस लोगों को समझाना होता है, और यही बेसिकली हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं। तो ये मैंने आपको कुछ ऐसी जो है वो NGO सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर के पाथ्स बताए हैं कि कौन सा पाथ फॉलो करके आपने क्या करना है। एक बात याद रखिएगा, मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ। आई गॉट जॉब आफ्टर 2 years ऑफ MPhil डिग्री। अब सोचिए कि वो 2 साल मेरे लिए कितने मुश्किल और कितने क्राइसिस वाले होंगे। और मैं जानती हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं इंटर्नशिप के लिए, और उनका रोना यही होता है कि हमें जॉब नहीं मिल रही है। लेकिन मैंने साथ एक और चीज भी ऑब्जर्व की है, जब इंटर्नशिप के लिए कोई स्टूडेंट आता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि उसको घर बैठे इंटर्नशिप की सर्टिफिकेट मिल जाए, या उसको कम से कम फील्ड पे काम करना पड़े। लेकिन मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं कि जो कि दिल से काम करते हैं। अगर हमने 3 हफ्ते का इंटर्नशिप प्रोग्राम दिया है तो वो 3 वीक्स पूरा करेंगे। उसको हम पूरा एक चार्ट बना के देते हैं कि ये आपने जो है सबसे पहले नेट पे बैठ के ये सर्च करनी है, ये आपने प्रपोजल बना के लाना है, फिर हम उस प्रपोजल को सॉर्ट आउट करते हैं, उसको सही करके देते हैं, फिर उसको कम्युनिटी प्रोवाइड करते हैं, ये आपकी स्ट्रीट है, इस स्ट्रीट में हमने इस तरह से काम करना है। लेकिन जो बच्चे उसको फॉलो करते हैं, जो बच्चे प्रॉपर तरीके से काम करते हैं, उनकी एक तो इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाती है। सेकेंडली, जब वो किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, बाद में फिर बच्चों के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है, वो बच्चे बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हासिल करते हैं। तो फील्ड कोई भी हो, हार्ड वर्क इज द मेन थिंग। मैं अगर अपना करियर आपके साथ डिस्कस करना चाहूं तो मेरा ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से था, और मैंने अब वहां पे करियर अपॉर्चुनिटीज दी। लेकिन हमने वहां पे ये किया कि अगर हमें इतनी सी अपॉर्चुनिटी भी मिली, अगर मुझे स्विस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने रखा, तो फिर मैंने ये नहीं देखा कि दिन है या रात है। फील्ड पे हर वक्त जाना, जो हमें ट्रेनिंग में सिखाया जाता था वहां पे इम्प्लीमेंट करना, खुद रिपोर्ट्स बना बना के भेजनी, हर प्रेजेंटेशन खुद तैयार करनी, यानी जो इज अ की टू सक्सेस। इसलिए डिसहार्ट मत हो। सबसे पहले तो ये जो आपके 2 साल डिग्री के हैं, इसमें सबसे पहले तो ये है कि आप साथ साथ चीजों को स्टडी करें, अपनी एक जो है वो गाइडलाइन बनाएं
कि मैंने अपनी डिग्री के साथ साथ ये करना है, मैंने इंटर्नशिप करनी है, मैंने अपनी जो फारिग टाइम है, जब मेरी प्रेप्स होती है, मैंने ट्रेनिंग्स के लिए कहाँ जाना है, उन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रब्ता करें, किसी छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बन जाए, क्योंकि जब आप फील्ड में आते हैं, छोटी ऑर्गेनाइजेशन भी है ना, तो आप लर्निंग कर रहे हैं। ये तो मैंने 2 चीजें आपको बताई कि आपने किस तरह से जॉब्स हासिल करनी है, लेकिन जॉब के साथ साथ एक तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इफ समवन वांट टू एस्टैब्लिश इट्स ओन एनजीओ, तो तब क्या किया जा सकता है। बहुत से लोग हैं जो अपनी एनजीओ बनाते हैं और इंतहाई कामयाब। मैंने ऐसी खवातीन को देखा है, मैं आपको लाहौर में तो देखे एक पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, चीजों को समझती है। मैंने बहुत दूर दराज के विलेजेस में अनपढ़ खवातीन को देखा है कि उनको हमने बताया कि सीबीओ कैसे बनाई जाती है, उन्होंने ना सिर्फ बनाई, उसको रन किया और फिर बड़ी बड़ी तंजीमों के साथ काम किया, हालांकि उनकी लैंग्वेज बैरियर भी था। तो एनजीओ बनाने का एक प्रोसीजर है। अगर कोई चाहता है कि मैंने जॉब नहीं करनी, मैंने एनजीओ बनाना के लोगों को हेल्प करनी है, फॉर एग्जांपल एनजीओ 2 किस्म की होती हैं। एक वो जिन्होंने ट्रेनिंग देनी है, लोगों को स्किल्स देनी है, लोगों के हाथ में कोई ऐसा हुनर देना है कि वो जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं वो इस काबिल हों कि वो खुद कमा सकें। दूसरी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन वो है जो कि सैलाब ज़दगान जैसे हैं, उनकी जाके मदद करना, उनको पैसे देना, गरीब बच्चों की शादी करना। मैं पर्सनली समझती हूँ कि वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा बेहतर है आप ऐसी तंजीम बनाए जो कि एम्पावर है कि अगर एक अनपढ़ और उसके पास स्किल है तो वो बेकार नहीं बैठ सकता, वो अर्न करेगा। तो एनजीओ बनाने का जो प्रोसीजर है वो मैं थोड़ा आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। अगर आप स्टार्ट में हमेशा लोकल रखिए। लोकल एनजीओ बनाने के लिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के पास आपको जाना पड़ेगा, वो आपको अपना आइन दें। उसमें आपने एनजीओ का नाम, जनरल बॉडी, एग्जेक्टिव बॉडी। जनरल बॉडी जो है वो आपकी तकरीबन 25 से 30 लोगों पे मुश्तमिल होती है। वो आप उसमें अच्छे लोग रखें, पढ़े लिखे लोग रखें, डिफरेंट डॉक्टर भी रखें। प्रोजेक्ट करना पड़ता है आपको, हेल्थ का प्रोजेक्ट करना पड़ता है, तो आपके पास आपको लॉस के हवाले से कोई प्रोजेक्ट करना पड़ता है, तो आपके पास स्किल्ड लोग होने चाहिए। अब जनरल बॉडी जो है वो अपनी एग्जेक्टिव बॉडी सिलेक्ट करती है और वो जो है तकरीबन 2 साल का प्रोसेस होता है। हर 2 साल बाद इलेक्शंस होते हैं। उस है वो अपनी 7 से 12 लोग मेंबर होते हैं, जिसमें सदर है, जनरल सेक्रेटरी है। वो उसमें आप जब आइन लेंगे तो उसमें सारे तकरीबन कोई ऑफिस बैरियर 7-8 जो है वो लिखे हुए होंगे। और उसमें भी हमने ये भी बताना होगा कि अब तक आपने जो छोटे छोटे अगर आप ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं ना, तो छोटे छोटे काम करें। कहीं किसी को आपने किसी बच्चे की शेयर करवा दी, थोड़ा उसमें हेल्प कर दी, मतलब खुद से नहीं, अपना एक ग्रुप जो आप बनाएंगे उसमें फंड रेजिंग होती है। और ग्रुप ऐसा बनाएं कि जो मुखलिस हो और काम करना चाहता हो, और मंथली उसका फंड रखें, उससे जो भी पैसे जनरेट हो रहे हैं, और वो फिर आप उसको दिखाते जाएं कि हमने इतने लोगों की हेल्प किया, वो आपकी एक छोटी सी रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। फिर आपने उसमें एरियाज रखने हैं। आपके आइन में लिखा हुआ होगा कि जी आप किस चीज के एनजीओ बनाना चाहते हैं। ऐसा ना करें कि जी हमने सारी चीजें इकट्ठी करनी है, नहीं, आप एक स्पेसिफिक एरिया लें। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू वर्क ऑन हेल्थ, तो आप हेल्थ पे करें। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हम लोगों ने हेल्थ पे नहीं करना, हम लोगों ने एजुकेशन को सिलेक्ट करना है। एजुकेशन में 2 किस्में हैं, एक तो होती है फॉर्मल एजुकेशन, एक होती है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। जो एनजीओज हैं बेसिकली वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन पे काम करती हैं। वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं है या फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में नहीं जा सकते, उसके लिए एनएफई स्कूल्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। तो आपने थोड़ा इस पे स्टडी करना है, नेट पे हर चीज अवेलेबल है, गूगल करें, आपको हर चीज मिल जाएगी। और आपने वो पूरा एक आइन जो है उसको फॉर्म फिल करना है, उस साइन की रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। वहां पे डिप्टी डायरेक्टर सोशल मोबिलाइजेशन वेलफेयर होते हैं, सोशल वेलफेयर, उनका ये काम होता है कि उन्होंने एनजीओ, अब थोड़ा सा प्रोसेस काफी स्ट्रिक्ट हो गया है, तो लेकिन ये है कि अगर आप उसको एक बनाना चाहते हैं सिंसेरिटी के साथ, तो आप उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला अभी काफी खासतौर पे ये जो भी सैलाब आया उसके बाद तो काफी ज्यादा ये आसानी हो गई है कि एनजीओ को जो सीबीओज और एनजीओ रजिस्टर्ड हो रही हैं, तो आप उसको रजिस्टर कराएं, 7 छोटे छोटे काम शुरू करें, और पहले दिन से आप नेट खोलें, नेट में आप ऑर्गेनाइजेशन देखें। फॉर एग्जांपल, आप हेल्थ पे काम करना चाह रहे हैं या जिस पे भी काम करना चाह रहे हैं, आप गूगल करें कि कौन कौन सी तंजीमें, कौन कौन सी डोनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इस पे काम कर रहे हैं। अब मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि एनजीओ चलानी कैसे है। उसमें डोनर ऑर्गेनाइजेशंस को देखें, जो डोनर ऑर्गेनाइजेशन उस एरिया पे काम कर रही है, उनके साथ फंड भी लिखा होता है कि उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसको जो है वो आपको मीट करने के लिए कुछ 2-3 साल दरकार होते हैं। और
इसके साथ जो छोटी आपकी फंडिंग होती है उसका तरीकाकार ये होता है कि आपने फिलैंथ्रोपिस्ट जो है उसका एक पूरा ग्रुप जो है वो तरतीब देना होता है। आपके लिंकेजेस अच्छे होने चाहिए ताकि आपकी मंथली जो है वो एक सिस्टम मेंबरशिप फीस का चलता रहे और आप अपने छोटे छोटे काम करते रहें। जब आपका थोड़ा एक्सपीरियंस डेवलप हो जाएगा, आप यकीन करें, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि डोनर ढूंढ रहे होते हैं कोई ऐसी तंजीम, कोई ऐसी एनजीओ जो कि सिंसेरिटी से काम करे, और उनको मिल नहीं रही होती। इस वक्त भी अगर आप देखें, सैलाब जदगान के लिए बाकायदा तौर पे डोनर्स की ख्वाहिश होती है कि क्योंकि मैक्सिमम जो है वो तंजीमें उस तरह से काम नहीं कर रही होती जिस तरह से उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो वो अगर आप एक सिंसेरिटी से अच्छी तंजीम बना के चलाएं, आप लीडरशिप क्वालिटीज हैं, आप कुछ कर, लीडरशिप क्वालिटीज जो है वो करना बहुत जरूरी है। तो अगर आप समझते हैं कि नेचुरली आप एक लीडर हैं, आप एक टीम को लेके चल सकते हैं, तो जॉब मत करें। फिर आप इस तरह करें, जॉब देने वाले बने। आप ही के साथ 4-5 लोग 10 लोग काम कर रहे होंगे, आपके पास छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आएंगे। आप ना सिर्फ अपनी सैलरी जनरेट करते हैं बल्कि साथ साथ जो है वो आप एक जॉब प्रोवाइडर के तौर पे भी काम करते हैं। ये बेसिकली हर इंसान जो है उसकी अपनी एक सोच होती है कि किस तरह से वो कहाँ पे अपने करियर को जो है वो बूस्ट करना चाह रहा है। तो अब ये मेरा थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपने एनजीओ सेक्टर में अपने आप जॉब हासिल करने के लिए आप किस प्रोसीजर से गुजरेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर का क्या प्रोसीजर है, और अगर आप अपना काम करना चाहते हैं, अपनी एनजीओ बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना। ये आफ्टर 8 to 10 मिनट्स हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करेंगे जिसमें आप डिफरेंट सवाल पूछ सकते हैं। मैं अब आपको थोड़े से बता दूं कि आपने एक तो मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर जो है उस डिपार्टमेंट है जो कि एनजीओ रजिस्टर करता है लोकल लेवल पे, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती हैं। आप अगर उसको उसके थ्रू अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, उसका प्रोसीजर मैंने आपको बताया है। इसी तरह से जो है कुछ और अदारे भी हैं, वॉलंटियर जो है एक्ट सेंटर, अगर एज अ वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन आप करना चाहते हैं, एज अ ट्रस्ट करना चाहते हैं, तो वो जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो कि एज अ ट्रस्ट भी उसको आपको रजिस्टर करवा देंगे, एज अ वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन आपको रिप्रेजेंटेटिव करवा दे उसको रजिस्टर करवा देंगे। और इस मैंने आपको वेलफेयर का पहले से बताया था, आप ना वही वाली बात को देखा सोशियोलॉजी के, जिन्होंने मेरे अपने क्लास फेलोज भी ऐसे हैं जिन्होंने छोटी छोटी तंजीमें बनाई हुई हैं और वो इस दौरान मतलब जॉब भी कर साथ साथ अपनी तंजीम को भी रन कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है, बाकी मैंने आपको कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो बताई हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी ना ट्रेनिंग्स के बारे में बताऊंगी कि कौन कौन सी ट्रेनिंग्स हैं जो एक सोशियोलॉजी के स्टूडेंट के पास होनी चाहिए। Ma'am, just a second. The meeting is going to end in 6 minutes. ओके, So we will rejoin and have the question and answer session in the next meeting. ओके। Yeah, I'll send you the link. Kindly go ahead. You can continue. Uh, 5 minutes, 53 seconds. Ma'am, we have 5 minutes. You can continue. ओके, ओके। अच्छा, ट्रेनिंग्स के हवाले से मैं आपको बात कर रही थी, प्रोजेक्ट साइकिल मैनेजमेंट। क्योंकि जो जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, आप डेफिनेटली सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स जो हैं उनकी जॉब्स प्रोजेक्ट्स में होती हैं। तो आप ये एक चार्ट बना लें कि आपने कौन कौन सी ट्रेनिंग्स करनी है। मैंने आपको सोशल मोबिलाइजेशन स्किल्स के बारे में बताया था, रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स हर डोनर का और गवर्नमेंट अदारों का एक मखसूस फॉर्मेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम एक प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, ये है फ्रेंच एजेंसी है, फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी, और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो टेक्साली गेट और फोर्ट की सारी कंजर्वेशन इसमें शामिल है, लेकिन पार्टिसिपेट अप्रोच के इसमें हम ट्रांसजेंडर के साथ और जो डांसिंग गर्ल्स हैं उसमें काम कर रहे हैं। तो ये जो है आपने इस तरह ये कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रोजेक्ट साइकिल मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग स्किल्स, फैसिलिटेशन स्किल्स नोट डाउन चाहिए।
मैनेजमेंट, फाइनेंशियल, अगर आप फॉर एग्जांपल चाहते हैं कि एनजीओ रजिस्टर कराएं तो आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है। इसमें ये सिखाया जाता है कि लेजर को कैसे मेंटेन किया जाता है, कैश बुक कैसे मेंटेन किया जाता है। अगर आप एनजीओ के हेड हैं और आपको ये चीजें पता नहीं है तो डेफिनेटली फिर आपको चीट कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बड़ी इंटरेस्टिंग जबरदस्त ट्रेनिंग होती है। अगर एज अ सोशियोलॉजी मैं ये समझती हूँ कि मुझे काफी मुश्किल ट्रेनिंग, क्योंकि लोग फ्यूचर में काफी हेल्प आउट कर सकती है। तो ये सारी कुछ ट्रेनिंग्स हैं जो एंड एवेल्युएशन बहुत जरूरी है। अच्छा, मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन होती है, हर प्रोजेक्ट की एवेल्युएशन होती है। व्हाट इज मॉनिटरिंग? एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल आपने जाके एक अवेयरनेस कैंपेन की है, तो अवेयरनेस कैंपेन के दौरान जो एक्टिविटीज आप करते हैं उन एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करना, उनको सुपरवाइज करना इज अ मॉनिटरिंग। एंड व्हाट इज एन एवेल्युएशन? एवेल्युएशन ये है कि हर प्रोजेक्ट की, जब प्रोजेक्ट के 6 महीने बाद, साल बाद उसके इम्पैक्ट स्टडी किए जाते हैं, उन इम्पैक्ट्स की जो स्टडी है वो एवेल्युएशन कहलाती है। आप ये देखिए कि एक्टिविटीज रेगुलर हो रही है, उनकी मॉनिटरिंग होती है, और प्रोजेक्ट का ओवरऑल इम्पैक्ट क्या आया है उसकी एवेल्युएशन होती है। तो अगर आप ये दोनों, इसके बकायदा तौर पे इंडिकेटर्स बनते हैं जो कि प्रोजेक्ट के शुरू में ही, मतलब प्रोजेक्ट शुरू होने के प्लानिंग फेज में ही बना लिए जाते हैं। वो जो है इंडिकेटर्स आपको हेल्प आउट कर रहे होते हैं। उसके बाद उसके मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन है। मैं अब आपको इसको छोटी सी एक इसके मिसाल दूंगी। नो रिसीट, नो रिइंबर्समेंट। अगर आपके पास रसीद क्या है, मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन है कि जी आपने ये चीज इतने में खरीदी है, तो वो सारी चीजें ऑलरेडी डिफाइंड होती हैं, ऑलरेडी आपके पेपर में मौजूद होंगी, जो आपका प्रोजेक्ट का पेपर होगा। अगर आपकी ये ट्रेनिंग नहीं होगी तो आप उस प्रोजेक्ट के पेपर को स्टडी ही नहीं कर सकते, तो उसको इम्प्लीमेंट करना तो मुश्किल हो जाता है। तो मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन बहुत जरूरी है। उसको भी जो है वो आपको कोशिश करें कि आप जो है वो स्टडीज के बाद, जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है या उस दौरान आपको कोई टाइम मिलता है, तो आप किसी अच्छी तंजीम से करें। चिप इस्लामाबाद की, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा जो ट्रेनर था वो चिप इस्लामाबाद था, और उसके जो ट्रेनर्स हैं, जब आप उसकी ट्रेनिंग करके निकलेंगे तो आप यूं समझ लें कि आप उस चीज में एक माहिर होंगे। एक लफ्ज मैंने जिक्र किया था इससे पहले, एटीट्यूड के हिसाब से, कि एटीट्यूड आजकल की जॉब में, और खासतौर पे जो इस तरह की जॉब्स हैं, उसमें बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपका एटीट्यूड, 3 दिन की अगर आपने ट्रेनिंग अटेंड की है, आपने 5 डेज की ट्रेनिंग अटेंड की है, जब आप उस ट्रेनिंग से बाहर निकलेंगे तो आप वो नहीं होंगे जो आप उस ट्रेनिंग के पहले दिन थे। मैं जब फर्स्ट टाइम फील्ड में गई तो मुझे लोगों से घिन महसूस होती थी कि यार मैं इनके साथ काम करूंगी, ये तो इतने मतलब अंडर प्रिविलेज लोग हैं, इनसे स्मेल आती है, मैं इनके साथ बैठूंगी कैसे? ये मेरा एटीट्यूड था, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी से आई थी, मैं एक डिफरेंट एनवायरनमेंट से आई थी जहां पे मुझे लगता था कि सब कुछ बहुत जबरदस्त है। लेकिन जब मैंने उन लोगों को देखा, तो मैं फार्मर से, मैंने आपको बताया मेरा पहला प्रोजेक्ट ही नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट का था, तो मेरा दिल नहीं चाहता था और मुझे लगता था कि आई एम वेस्टिंग माई टाइम, मतलब मैंने कोई इसलिए तालीम हासिल की है। लेकिन जैसे जैसे मैं ट्रेनिंग्स अटेंड करती गई तो एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई कि आपके अंदर का इंसान जो है ना वो जाग जाता है, और आपको ये सिखाया जाता है कि जो ह्यूमन बीइंग जिसके साथ आप इंटरेक्ट करते हैं, ही इज अ ह्यूमन बीइंग जस्ट लाइक यू। अगर वो किसी ऐसी जगह पैदा हुआ है कि जो कि उसके लिए सूटेबल नहीं है, या आपकी नजर में वो सूटेबल नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके राइट्स सारे खत्म हो जाते हैं। उसको वैसे ही रिस्पेक्ट दीजिए, उससे वैसे ही बात कीजिए, उसके कल्चर को अडॉप्ट करके। ये नहीं हो सकता है कि हम जा रहे हैं अंदरून शहर तो हम पैंट शर्ट पहन के चले जाएं। नोबॉडी विल ओन अस। और ये मेरा एक्सपीरियंस है कि हमने बच्चियों को बुलाया कुछ यूनिवर्सिटीज के, तो जाहिर बात है वो अपने एक जो उनका था अपने यूनिवर्सिटी वाले उसमें आए हुलिये में, तो मुझे ट्रेडर्स ने बुलाया एक दिन, मुझे कहते हैं जी हमने इनको काम नहीं करने देना। मैंने कहा क्यों? ये मैंने कहा बच्चे आपके लिए काम करने आई, आपका इलाका डेवलप होने जा रहा है। उन्होंने कहा मैडम माजरत के साथ जो ये लिबास है ना, ये हमारे एक्सेप्टेबल नहीं है, हमारा जो है ना, ये तो हमारे कल्चर पे इसका बड़ा बुरा इफेक्ट पड़ता है। फिर हम लोगों ने बैठ के डूज एंड डोंट्स, जो बच्चियां काम करने आएंगे उनके डूज एंड